What you doing, honey? Drum. Huh? What you doing? Hit the mosquito. Okay, what you doing? I'm hitting the mosquito from here. Mosquito. No. Tell me what we were doing. Drum. Playing the There's a drum. mosquito here in drum. Hmm. The mosquito. Chalo, Mama will arrange your swimming bag. Tomorrow you have swimming school class. Today swimming. Not tomorrow morning. So this is your cap. ये हो गया उनका टॉवल। सोनू क्या टॉवल, कैप और गॉगल्स बोला था ना? और ड्रेस तो अंदर पहन के जाएंगे ना, जो यूनिफॉर्म के अंदर। वो स्विमिंग क्लास और एक्स्ट्रा वो अंडरवेयर बोला था ना। हाँ, you did swimming today? Close your eye. Yeah. Then open your eye. Oh, you made this for Mama. Oh, honey, what happened in swimming pool today? They're all the family. Huh? What happened in swimming pool today? You swim? Yeah. With whom? With my friend. With my friend. And Bunny, you? Mama, you know who also came in swimming pool? Swimming pool. Yes, who came? That swimming teacher. Oh, Your he swimming he made you learn how to swim? No, Mama, you know honey can walk in water needs. Oh, wow. And who changed your dress? Swimming dress? I did it myself. Oh, myself. Would you Nije? Mama, Very good. Bunny, you also changed Nije? oh, Then who helped you? Which auntie? Liberty auntie? no. Then And which auntie wearing loin dress? auntie wearing loin dress. Okay. Okay, Oh, okay. baby. Mama, You enjoyed swimming? yeah. Mama, see coco melon. Coco melon. Oh. Rachel also swimming today? And who else? Cedric? Cedric? Huh. No, Cedric will upset, then Cedric comes. And you were swimming with whom? What's his name? Cedric was not swimming. Mama, Cedric was not swimming. Then? No, Cedric will be cold and sick. Oh, that's right. Mama, see what I've made. Oh, family. Family heart. Oh, all the family members inside the heart. Very good. Who are there in the family? Tell. Honey, Bunny, I, Hmm? and new Mamu, Hmm? and new Mai, Hmm? and I, Hmm? and Honey baby sister, Hmm? and Dada. Mama? And Bunny? Where is Mama? Bunny here. Oh, where is Mama? Uh, You made it for Mama and Mama is not there. no, Mama. Hmm? Mama, here is Mama. Oh, here is Mama. Bunny. And where is Sangram and Maya? Sangramaya here. Where's And where is Papa, Mummy? Papa, Mommy here. What here? Everything is just And saying. where's Bunny? Bunny's here. Bunny is there. गाइस यहाँ पे सारे हनी बनी के जूते चप्पल जो है वो इसमें मैं रखती हूँ। तो काफ़ी मेसी हो रखा था एंड वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो हर 2-3 महीने में उनके चप्पल जूते जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो ये पूरा बैग भर के मैंने निकाला है, तो ये सारे डोनेशन बॉक्स में डाल देंगे। उसमें 2 पैर मेरे भी हैं जो मतलब ख़राब हो गए, तो वो मैं फेंक दूँगी। एंड हनी बनी अभी रेस्ट कर रहे हैं, आधे घंटे में उठेंगे। तो यहाँ पे कपड़े भी थे तो कपड़े भी फोल्ड कर दिए हैं, कुछ कपड़े मैंने वॉश करने के लिए डाले हैं, कुछ अभी प्रेस होंगे। तो आज थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है।
सो गाइज 2-3 दिन से थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखा था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं ट्रिप पे, किसी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं खाली नहीं, सभी थे, क्योंकि एक तो 4 साल के बाद हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे थे, ऐसे मतलब इंडिया छोड़ के कहीं और कंट्री से ट्रैवल कर रहे थे एंड प्लस साथ में मिलके जा रहे थे तो अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सोचा था कि जिस दिन हम लोग ट्रैवल करेंगे उसी दिन मैं आप लोगों के साथ में डेस्टिनेशन भी शेयर करूंगी, किसके साथ जा रहे हैं वो भी शेयर करूंगी। बट जैसे प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो गया है, इधर उधर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से सब कुछ उलट पुलट हो गया है। हमारा तो हो जाएगा शायद, हम चारों का, जीत का, मेरा, हनी बनी का, क्योंकि हमारा वीज़ा अप्लाई हो गया है। यहाँ पे इतना कुछ वो नहीं होता है, बट जो लोग हमारे साथ ट्रैवल करने वाले थे उनका शायद पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारा लॉस भी हुआ है, टिकट्स हो रखे थे, तो वही सब है। मुझे पता है कि किस रीज़न की वजह से क्या हुआ है, बट जीत आपको शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, इसलिए मैं जीत का वेट कर रही हूँ शाम तक का। तो आज मैं आप लोगों को बता दूंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब जा रहे थे, हम लोग शायद जाएंगे बट उनके साथ नहीं जा पाएंगे। एंड क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, शायद आप लोग में से अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उनको भी शायद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो इसीलिए मैं जीत का वेट कर रही हूँ शाम तक का। ऐसे ही थोड़ा सा मूड ऑफ था, सुबह से बातचीत, वही फ़ोन वगैरह में सब लोग बिजी थे, तो खाया पिया कुछ नहीं था, सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो अभी मैंने थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट किया था, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह किया, चाय पिया। तो अभी चलो छोड़ो, जो होना होगा वही होगा, इतना सोच के कोई फ़ायदा नहीं। बट हाँ, जितना भी टाइम होगा हम लोग एंजॉय करेंगे साथ में। ट्रिप नहीं तो देखते हैं कुछ और सही, बट हाँ देखते हैं। तो हनी जीत आते हैं तो आपसे मिलवाती हूँ, सारी बातें आप लोगों से क्लियर करती हूँ। What is this? Dada. You're not honey? No. Who are you? Dada. How? Yes, put the slime thing. What's that? A slime, rooty ball. Dirty ball. मेरा बच्चा। संभाला था मैंने बहुत अपने दिल को। So guys, कैसे हैं? बढ़िया है सब लोग, हम भी अच्छे हैं। तो थोड़ी सी क्या, मेरी बीवी थोड़ी दुखद सी है। दुखद वाली, इतना तो समझ, दुबई आने के बाद जब हमने अपनी लाइफ स्टार्ट की, पहले तो हम लोग पेरेंट्स के उसमें रहते थे कि हाँ वो घर संभाल रहे। जब हमने लाइफ स्टार्ट की अपने दुबई में, इतना तो इनसे मैंने सीखा है कि हाँ जो भी सिचुएशन है, अच्छा बुरा, उसमें ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वो होगा। बट हाँ इनसे मैंने सीखा, सच बताऊं, मैं पहले बहुत टेंशन लेती थी, बहुत दुखी होती थी। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ बोले, कोई मुझे फर्क, बट अब ये उल्टा हो गया है। अब ये ज्यादा टेंशन लेते हैं, ज्यादा सोचते हैं, मतलब एक कुछ हो जाए ना, ऐसे कुछ हो जाएगा ना तो इनके दिमाग में चलता रहता है। बट अब मैं वो सब चीजों से बहुत ऊपर हूँ, मुझे अब इतना कुछ ऊपर तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एक ऐसा फील होता है, मतलब लेट्स कम टू द टॉपिक। सो अल्टीमेटली अर्चना के भाई और भाभी आने वाले थे, कि आने वाले हैं अभी भी, बट हम लोग सब लोग साथ में प्रोग्राम बना रहे थे कि हम लोग इस्तांबुल जाएंगे टर्की, और वहाँ से कोई और जगह जैसे अंतालिया हो गया, बुसरा हो गया, और वो सब चीज़ों पे घूम फिर के आएंगे। बट अल्टीमेटली सारा का सारा किस्सा अटक रखा था वीज़ा पे। एक तो हम लोगों ने बहुत लेट वीज़ा अप्लाई किया, हमें लगा था कुछ शायद वीज़ा ऑन अराइवल होगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। अगर आप लोग टर्की जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको वीज़ा वेल इन एडवांस में अप्लाई करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट मिलनी पड़ेगी, बहुत डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीजें मांगते हैं वो। ओके, वेरी गुड, यूर पुलिस स्टेशन ओनली, मतलब पुलिस से सीधे पुलिस स्टेशन बन गया। ओके, गो प्ले आउटसाइड, मामा डैडा टॉकिंग समथिंग। ओके, गो। ही इज बिकम पुलिस स्टेशन टुडे, मतलब एंटायर पुलिस स्टेशन एरिया। सो और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता लगी कि आपका कौन से प्रांत से पासपोर्ट इश्यू हुआ है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल, रुको, आप सारी चीजों को मिक्स मत करो, क्योंकि अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, जैसे दुबई के लिए आपको पहले से उसका जनरल कैटेगरी में पहले से बुक, मतलब वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जो कि आपको बहुत बाद का मिलता है। जैसे हमारे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि वीजा आने में 7 से 10 वर्किंग डेज लग जाते हैं, तो हमारे पास इतना नहीं कि हम लोग जनरल में अप्लाई करें, हमें अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा, फिर हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करें, फिर हमारा वीजा आएगा। इसलिए हमने प्रीमियम लॉन्च में जाके वो किया, जिसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा पैसे लगे, जो कि इंस्टेंटली हमें वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा। जस्ट टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर,
सो ऑन दी वीजा कॉस्ट, तो प्लीज उसको जनरल लॉन्च में थोड़ा सा एटलीस्ट 20-25 दिन पहले ही अप्लाई करें, 1 महीने पहले अप्लाई करते तो सबसे बेस्ट है। एंड डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सारी चीजें जैसे पासपोर्ट, वीजा, एमिरेट्स, वो सब ऑफिस से एनओसी, फिर बच्चे हैं तो 8 साल के नीचे तो पेरेंट्स का वो सब, पेरेंट्स का एनओसी, तो इस वाइफ को लेके जा रहे हैं तो मेरे को आप वापस इसको एनओसी देना है, इसका एनओसी देना कि इसको मतलब मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, वो बहुत सारी चीजें, वो तो छोड़ो, डॉक्यूमेंट्स तो अरेंज हो ही जाते हैं, बट हाँ आपको 1 महीना पहले सारा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। और ये वीएफएस के थ्रू होता है तो बहुत पेनफुल एक्सरसाइज है वीएफएस के थ्रू, लेकिन इंडिया से अगर आप करवा रहे थे, हम लोगों ने दुबई से कराया कि दुबई और अबू धाबी 2 प्रांत है, तो दुबई में फटाफट चलो प्रीमियम लॉन्च में मिल गया और हम लोगों ने फटाफट अप्लाई कर दिया, लगे बट हो गया। हाँ, बट जैसे कि अर्चना के भाई और भाभी भुवनेश्वर में रहते हैं, तो भुवनेश्वर से ऑब्वियसली आपको अलग अलग प्रांत देखना पड़ेगा। अगर आप कहीं और से हैं तो आपको देखना पड़ेगा आपका रीजन स्पेसिफिक कौन सा है। इंडिया में एक सबसे बड़ी मुसीबत क्या हुई है कि आपका पासपोर्ट कहाँ पे इशू हुआ है। जैसे मेरे भाई का पासपोर्ट भुवनेश्वर में इशू हुआ है, तो वो जाके हैदराबाद में अप्लाई करेगा टर्की वीजा के लिए। भाभी का पासपोर्ट जैसे बैंगलोर में इशू हुआ है, तो उनके लिए मुंबई जाना पड़ेगा टर्की वीजा के लिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब 2 हस्बैंड वाइफ है, वो मुंबई जाएगी, एक हैदराबाद जाएगा पासपोर्ट के लिए। और इतना टाइम हमारे पास नहीं था क्योंकि अपॉइंटमेंट भी नहीं मिला, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट उन्होंने बंद करके रखा है, ईमेल के थ्रू वो सुन ही नहीं रहे। तो ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम्स आए। तो भाई फाइनली हैदराबाद गया अपना वीजा करने के लिए, एंड भाभी का उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट किया कि उनका भी यहाँ से ले लो, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और उनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि बॉम्बे का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। ऑब्वियस बात है ना, कोई बंदा फिर हैदराबाद से बॉम्बे जाएगा, पता चले 2 बंदे जाएंगे और आएंगे, फिर 20-40 हजार रुपए का खर्चा करके फ्लाइट से जाएगा, फिर वहां पे लेंगे नहीं लेंगे, तो बहुत सारी चीजों के बीच में फंस जाता है। ले भी लेंगे, मतलब अपॉइंटमेंट तो नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो पता चले पासपोर्ट अटक जाएगा, उन्होंने फिर दुबई भी ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट नहीं होता तो दुबई की टिकटें भी जाएंगी, और फिर यहाँ नहीं आएंगे तो फिर टिकट भी जाएंगी। इस्तांबुल की टिकट्स भी गई बेकार। अगर उनका पासपोर्ट अटक जाएगा तो फिर दुबई के जो टिकट्स हुए वो भी अटक जाएंगे। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर भी हो गया, एंड बट उनका हुआ नहीं। उधर विंटर गारमेंट्स भी इतने अच्छे खासे नहीं मिल रहे थे, तो भाभी ने यहाँ से ऑनलाइन भी ऑर्डर किया था जो कि आने वाले हैं। उस पे तो छोड़ो वो तो जो खर्चा हुआ छोड़ो, वो सब बातें। बट हाँ, बट ये था कि पहले हमारा प्लान था कि हम चारों मतलब हनी बनी, ये भाई भाभी, संग्राम माया, हम लोग जाएंगे। पहले संग्राम माया का कैंसिल हुआ क्योंकि संग्राम को छुट्टी नहीं मिला। संग्राम माया का कैंसिल हुआ, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहता है। हाँ, उसके बाद भाई भाभी का तो फॉर श्योर ही था। हम लोग ना मतलब ये सब प्लानिंग कब से हो रखी है, क्योंकि आपको पता कि उनकी एनिवर्सरी आ रही है, फर्स्ट एनिवर्सरी दिसंबर 11 को, तो उसी हिसाब से हमने प्लानिंग किया था। बट हम सब वो हो गया रहा है कि हाँ इस्तांबुल में वीजा का इतना इशू नहीं होगा। जब हमने देखना स्टार्ट किया कि कैसे वीजा अप्लाई करना है, तो तब तक काफी लेट हो चुका था। ये तो हाँ दुबई का थोड़ा वो है, तो हमारा शायद आ जाएगा, अभी तक हमारा वीजा भी नहीं आया है। इसलिए अगर आपको कहीं की चीज करनी हो तो एटलीस्ट प्लानिंग बहुत एडवांस में करें, है ना। हम लोगों ने काफी लेट कर दिया था, और अगर शायद समय रहते इसको प्लान कर लिया तो चीजें सेट हो जाती। बट नेवरदलेस एक अच्छी चीज ये है कि अगर हमारा वीजा आ गया टाइम से तो हम चारों जाएंगे। सो वी विल ऑल गो टू घूमी। ऑब्वियसली वी विल मिस देम। एंड और एक भी प्रॉब्लम हुआ है उनके साथ में, उन्होंने जो कनेक्टिंग फ्लाइट किया है दुबई के लिए, भुवनेश्वर से दुबई, दिल्ली में हॉल्ट है। ये बहुत अजीब सी बात है। नया सिस्टम दुबई दिल्ली एयरपोर्ट में कुछ रैपिड पीसीआर टेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत लंबा क्यू लगता है। तो एयरलाइंस को उतना गैप रखना चाहिए 2 कनेक्टिंग फ्लाइट्स में कि वो रैपिड पीसीआर टेस्ट वो करा पाए, पैसेंजर जो है वो करा पाए। नहीं तो आपको टिकट ही नहीं इशू करनी चाहिए। अगर मैं भुवनेश्वर से दुबई की सीधे की टिकट बुक कर रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है कि आपने कनेक्टिंग कर दी भुवनेश्वर से मुंबई या दिल्ली या हैदराबाद, और वहां से सीधे दुबई आ गए, राइट। लेकिन अगर आपने बीच में गैप ही नहीं दिया तो आदमी हैदराबाद, दिल्ली या मुंबई पहुंच के रैपिड पीसीआर कैसे कराएगा, और नहीं कराया तो फिर वो आगे नहीं जा पाएगा। जितना भी हमारे फ्रेंड सर्कल से हमने पता किया है, मिनिमम 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं ये जो इमिग्रेशन, वो भी तब जब आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा दे। अगर आप कभी आ रहे हैं यूएई और आपका रैपिड पीसीआर होना है तो देयर इज अ ऑनलाइन लिंक, प्रोबब्ली अगर मैं तो देता हूँ तो उसको डाल देना, ऑनलाइन लिंक, वहां पे रजिस्टर करा के पे कर दें ताकि आपको रजिस्ट्रेशन की लाइन से नहीं गुजरना पड़े।
रजिस्ट्रेशन की लंबी लाइन होगी, फिर रैपिड पीसीआर की लंबी लाइन होगी, और उसके बाद इमिग्रेशन की लंबी लाइन। तो 3 में से एक लाइन रजिस्ट्रेशन की तो आप कट करवा दें। लास्ट ईयर हम लोग जब गए थे तब हम लोग वो 72 आवर्स पहले जो पीसीआर टेस्ट कराना होता ना वही था बस, रैपिड की जरूरत नहीं पड़ी। बट इस बार वो तो चाहिए ही 48 आवर्स के पहले, प्लस इसका भी चाहिए जो जिसका फीस है अराउंड 3500 पर हेड, जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ, है ना। अब वो क्या कर सकते हैं भाई, वो इसलिए अभी आई थिंक व्हाट आई हैव हर्ड, आई डू नॉट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद एक रिक्वेस्ट पुट किया है कि नाउ द सिचुएशन इज मोर और लेस कंट्रोल ऑन द पैंडेमिक साइड, तो प्रोबेबली एटलीस्ट ये रैपिड पीसीआर टेस्ट का सीन नहीं है, उसके चक्कर में बहुत सारे लोग फ्लाइट मिस कर जाते हैं, या फैमिलीज एयरपोर्ट पे आके बहुत स्ट्रगल करती है, बच्चों के साथ में आप क्यूज में खड़े रहते हैं, बहुत लंबी लंबी लाइंस और बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। So let's see how it happens. वही हुआ है, उसका भी हमें इतना नॉलेज नहीं था, तो उसने जो पहले के आइटिनरी थे ना एयरलाइंस के कि हाँ भुवनेश्वर इतना, बीच में 2-2.5 घंटे का हॉल्ट, फिर दुबई का फ्लाइट पकड़ो, तो उन्होंने वैसे ही बुक किया है। बट अब ये सारे सिचुएशन देख के लग रहा है अगर उनका शायद वो दुबई का फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे जितना उनके पास हॉल्ट का टाइम है, तो फिर उनको टिकट फिर पोस्टपोन करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल टिकट उन्होंने किया है। तो ऐसे करके बहुत सारे उसमें भाई पूरा आज टेंशन में पड़ रहे हैं, चलो छोड़ ही दो, हम लोग नहीं आ रहे हैं। और भाई आप लोग एक प्रे करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ एयरलाइन से कोशिश करके कि अगर इनका टर्की वाली टिकट्स आगे के लिए पोस्टपोन हो जाती तो हैं, एटलीस्ट वो बाद में होके बाद आएंगे, में हो सकते हैं, नहीं तो क्या हनी बनी को हम दोनों को ही झेलना पड़ेगा, है ना। वो इतने खुश रहते, बोथ सेट ऑफ मामू माई साथ में रहते तो उनके मजे न्यारे होते, बट अब वो हमें ही झेलेंगे। एक्चुअली मतलब जगह घूमने का जितना खुशी था ना, उससे ज्यादा था कि सब लोग साथ में जाएंगे, एयरबीएनबी बुक करेंगे, मतलब साथ में कुकिंग वगैरह करेंगे, गाड़ी एक रेंट कार लेंगे, घूमेंगे, वो सब था दिल में। अब वो सब नहीं हो सकता। हम चारों का दिल की ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। हाँ, मतलब हम चारों तो जा ही रहे हैं, हम चलेंगे वहाँ पे, बट हाँ वो बशर्ते वीजा आ जाए पहले। हाँ वही, हमारा भी वीजा नहीं आया है, बट होपफुली हमारा आ जाएगा। यहाँ पे बहुत प्रोसेस वो जल्दी कर ही देते हैं। जय माता दी। तो ये है प्रॉब्लम। मैंने सोचा था कि ये सारा सस्पेंस आप लोगों के साथ में उसी दिन में शेयर करूंगी जिस दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, बट उस तक नौबत ही नहीं आई। बट चलो देखते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद पहले डिस्पेंस हो गया। चलिए कुछ मतलब अगर कुछ शायद इसी में कुछ अच्छा ही है, कुछ है तो टेक इट, लेट्स टेक इट इन द पॉजिटिव वे एंड लेट्स गो। एक बार हमारा वीजा आ जाए, लेट्स गो टू टर्की। तो बस ये है, कुछ 2-3 सब्सक्राइबर है जो पहले ही समझ गए थे, क्योंकि उन्होंने भी ट्रैवल किया, तो उनको समझ में आ गया, क्योंकि कितना उन्होंने प्रोसेस जो है वो हेक्टिक कर दिया है, उनको समझ में आ गया। क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ट्रैवल किया था, तो उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने कमेंट भी किया था कि हमें समझ में आ गया कि आप टर्की जा रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने भी यही सेम प्रॉब्लम सारा फेस किया था। उनकी बहुत प्रोसेस जो है उन्होंने हेक्टिक कर दिया। अभी ये कोविड का फायदा वो बहुत ज्यादा उठा के ऐसा कुछ कर रहे हैं। चलिए नेवरदलेस लेट्स गो विद अ गुड नोट एंड कि हमारा वीजा आ जाए, एटलीस्ट हम चारों का टिकट फिर एक चीज अच्छी ये है कि हम लोगों को कपल का अपना टाइम मिल जाएगा, वो लोग अपना जाएंगे, अपना टाइम मिल जाएगा। मे बी दिस इज द गुड थिंग, है ना। एनीवे जो भी देखते बस हैं, मेरी बीवी को मुझे नहीं झेलना पड़े। ये बेचारी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। नहीं, मैं इमोशनल नहीं हूँ, मतलब हाँ, मतलब उनका मन था, फर्स्ट एनिवर्सरी था, तो वो वही चीज यहाँ दुबई में कंप्लीट पूरी करेंगे ना। देखेंगे, देखते हम लोग। अगर उनका दुबई जब आएंगे, वो मतलब जो क्या बोलते हैं मल्टी एंट्री वीजा, अगर वो लगवाते हैं तो हम लोग और कहीं पास की कंट्रीज अगर ट्राई करेंगे, अगर वहां पे जा पाए तो। जैसे दिस इज द राइट, वही यही है सबसे पास है ओमान। ओमान मुसंदम बहुत अच्छी जगह, हम लोग जाके आए हैं। देखते हैं अगर कुछ होता है तो प्लान करते हैं, बट हाँ पहले से कुछ और होता नहीं। है, वो क्या कहते हैं, जब एक प्लान में कुछ मतलब कहते हैं ना दिक्कतें कुछ चीजें आती हैं, तो 4 नए प्लान खुल जाते हैं। सो रादर देन थिंकिंग ऑन दिस, लेट्स क्रिएट 4 न्यू प्लान्स एंड एंजॉय टू द फुलेस्ट। क्या बोलते हो दोस्तों? वही जो हो गया, और उसका मतलब ट्रिप करके कोई फायदा नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कितना एंजॉय करते हैं, और वो लोग आएंगे तो आप लोग भी अगर कुछ सजेशन देना चाहें कि क्या कर सकते हैं दुबई के आजू बाजू, तो प्लीज 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 यहाँ कमेंट करके जरूर बताएं। व्हाट कुड बी द न्यू थिंग्स व्हिच वी कैन डू टुगेदर एंड वी ऑल कैन बी ऑल। या एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए संग्राम माया को भी छुट्टी मिल जाएगा। माया को तो मिल ही रहा था, कुछ नहीं तो वीकेंड पे तो निकल ही सकते हैं। हाँ।
मतलब उनका तो वीकेंड नहीं है। वो एक दिन की ले लेगा और क्या माया। और एक प्रॉब्लम है कि भाभी का जॉब लग गया है नया, तो उनका ना अभी ट्रेनिंग चल रहा है, तो वो हमारे साथ जाते भी ना टर्की तो हाँ, भी वो हाँ, ट्रेनिंग ही अटेंड करते रहते हैं मेरे को मोबाइल अभी पता चला, को कहते हैं ना कुछ जो होता है कुछ अच्छा है, तो अभी मेरी दीपू से बात होते हुए पता चला कि वाइल में भी वहां होने पे भी, बिकॉज उनकी जस्ट नई जॉब लगी थी, तो प्रोबेबली उनका जो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होने वाला था। हाँ वो तो था फिर ना, सोच के बट वो उसको एडजस्ट करती, वो बोल रही कि नहीं हम लोग जाते साथ में, तो उस चीज को वो एडजस्ट करती, बट वो लेकिन फुल्ली एंजॉय नहीं कर पाती। कभी कभी उनको होटल में ही रुकना पड़ता क्योंकि उनका ट्रेनिंग चल रहा था, अभी उनका नया जॉब लगा तो उनका अभी वो ट्रेनिंग में ही है। तो बस यही है, चलो शायद इसी वजह से भी कुछ हुआ होगा, वो तो माता रानी को ही पता है कि तो क्यों लेट्स क्रिएट द ऑल्टरनेट प्लान्स नाउ। यस, आप लोग भी सजेशन देना ताकि उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी कुछ स्पेशल हो पाए, हम लोग थोड़ी इधर आजू बाजू कुछ घूम पाए, क्योंकि दुबई तो वो पूरा घूम चुके हैं। लेट्स डू दैट। यस, तो Cheers, बस guys. यही था अपडेट गाइस, और क्या सस्पेंस रखूं मैंने सोचा हमें लगा चलो कि छोड़ो। गुड थिंग, बट वो क्या था, द सस्पेंस रखने का रीजन भी यही था कि हाँ चीजें पहले सुलझ जाए। पता चला कि चीजें सुलझ ऐसे गई हैं कि अब उलझ गई। नहीं अब उलझ नहीं, अब सुलझ गई हैं। अब हम जा रहे हैं इधर और वो इधर घूमेंगे, एंड देन वील प्लान समथिंग। अगर वो आते तो हैं नई सुलझ ये है कि वील प्लान समथिंग, है ना। तो अब क्या अभी एंड कर रहे हैं? हाँ एंड कर रहे हैं, अभी तो बहुत बातें कर ली हम लोगों ने। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड वाले में। ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय। ये मत भूलना यार, मोटिवेशन बहुत मिलता है मुझे। बाय।